Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today I PGT Accountancy will teach you chapter number 2 and we are using the book NCERT. Today we are doing exercise 2.5 and in this exercise we will study about algebraic identities. So you already know these algebraic identities in your earlier classes. You have go through these. The first one is x plus y square is equal to x square plus 2xy plus y square. So ये आपको लर्न करनी है. कई बार आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy. So then x minus y whole square, so x square plus y square minus 2xy. Then x square minus y square x plus y, x minus y in the bracket. And when x plus a x plus b is there, then x square plus a plus b plus x in the bracket plus ab. So today we will do the sums based on these algebraic identities. In your notebook, firstly you will write these identities and then you will start solving the sum. This is a very important exercise as algebraic identities is the base of any mathematics chapter. So let us have a look on the first question. So what is coming in your mind after watching this? Can you tell me the name of the identity? Yes, x plus a, x plus b. Very good. So what is the identity? X square plus a plus b, x plus a b. Fine. Now put what is a here? 4. Okay, and what is b here? 10. So let us use x square. What is a? 4. What is b? 10. What is a again? 4. What is b again? 10. So what is the answer? X square, 4 and 10, 14. X, 4 tens are 40. Question is solved. So what first picture come in your mind in while looking at the question? Which identity will be used in the question? Write the identities, then solve it. Let us proceed on the second sum. X plus 8, x minus 10. So no need to use the negative identities. हम इसको ऐसे ही कर लेंगे. Here you are watching that a is equal to 8 and b is equal to minus 10. Fine. So again identities x square plus a plus b. लेकिन यहाँ तो b जो है माइनस में है. Then a b. अब b माइनस में है तो साइन ध्यान रखना है आपको. एक्स स्क्वेयर 8 माइनस 10 कितना होता है? -2. और प्लस माइनस माइनस 8 टेंस आर 80. तो आपको जो इंटीजर्स के रूल्स है वो आपको याद रखने हैं. दैट अनलाइक साइन के नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का साइन आता है और आइडिया सब्ट्रैक्ट होते हैं तो साइन ग्रेटर नंबर का आता है. देन आपका आता है 3x प्लस 4. तो यहाँ पर आपने क्या देखा है? वही सेम आइडेंटिटी यूज़ हो रही है. x प्लस a, x प्लस b. ठीक है. तो x स्क्वेयर क्या होता है? x स्क्वेयर. x की जगह पे कितना दिख रहा है अब आपको? वेरी गुड, 3x. देन a प्लस b. a इज़ 4, b इज़ -5, x इज़ 3x. देन a b. 4 इंटू -5. 3 का स्क्वेयर 9, 9x स्क्वेयर. 4 माइनस 1 है, 5 इज़ -1. -1 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x -20. इन दिस वे यू विल सॉल्व इट. तो आपको ध्यान रखना है कि विच आइडेंटिटी यू आर यूजिंग एंड हाउ वी विल पुट इट. नाउ हेयर व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? Values are same here but the sign is different. So what are you watching? X plus a, x minus a, या x plus y, x minus y. तो कितना हो गया बेटा? x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर. तो यहाँ पे x की जगह पे आपको क्या दिख रहा है? y. y है ना. और y की जगह पे कितना दिख रहा है? 3/2
स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर 2 2 ज़ा 4 और 3 का स्क्वेयर 9, 2 का स्क्वेयर 4, फाइन। देन आपका 3 माइनस 2x, अगेन आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। देन आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 103 और 107 को बिना मल्टीप्लाई करे आपको सॉल्व करना है। तो 103 को क्या लिख सकते हो आप, 100 प्लस 3, और 107 को क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 7। अब x प्लस a और x प्लस b की आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी। यहाँ पे 95 को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 5, और 96 को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 4। अब यहाँ पे भी x प्लस a, x प्लस b की, यहाँ पर 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। अब आपका ये जो क्वेश्चन है आप क्या लिख सकते हो, आपने 103 को लिखा, 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वेयर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, 3 7 ज़ा 21, यहाँ 1000, 10,000 ऐड कर देंगे। 95 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, फिर एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी, या आप वही अपना वाला ए प्लस बी ही लगा दें तो साइन तो भी माइनस में बाहर आ जाएगा, प्लस 5 इंटू 4, कैलकुलेशन कर लेंगे आप। देन 100 प्लस 4, 100 माइनस 4, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सॉल्व कर लेंगे इसे। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पर आपको अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आप एक्सपेंड कर रहे थे, ये ऑलरेडी एक्सपेंड फॉर्म में दे रखा है, तो आपको एक्सपेंड फॉर्म को देखकर पता लगाना है, फैक्टराइज करना है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एक्स, तो 9x स्क्वायर को क्या लिख दिया, 3x स्क्वायर। देन वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे 2ab, तो देखो मिडिल टर्म ही तो आ रही है, 2 3xy, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई, रीज़न लिख देंगे और इसको 2 टाइम्स स्पेंड करके लिख देंगे। यहाँ पर किसकी आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, 4 को किसका लिख सकते हैं, 2y का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर हो गया, ये y अपॉन 10 का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद में क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई बाई 10, एक्स प्लस वाई बाई 10, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, ये इसको मत लेना, ये ऐसे लिखा जाएगा। I hope that you have understood. So your work is do question number 1 to 3. If you have done in the notebook, do practice in the practice notebook. If you have not done, you are a new student, do it in the notebook. Thank you so much. God bless you all.